never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I gotta. Hello YouTube family, what's up everyone? I hope you are doing fine and great. Well, welcome back to the channel once again, Himali Rider Vlogs. और अभी मैं I'm on my way to काश्यम, एक काश्यम बोल के जगह है, वहाँ पे जा रहा हूँ because of some work. लेकिन यहाँ पे रास्ते में एक छोटा सा व्यू पॉइंट, काइंड ऑफ अ व्यू पॉइंट एरिया है, तो रुका हुआ हूँ. ये व्यू पॉइंट बर्मिक व्यू पॉइंट बोलते हैं इसको. यहाँ से आपको टिस्टा, रंपू, माजिटार वगैरह, ये सिक्किम का माउंटेन्स वगैरह ये सब दिखता है. लेकिन आप जैसे कि आप देख सकते हो कैमरा में इस वक्त कुछ भी विजिबल नहीं है बिकॉज ऑफ द वेदर, बिकॉज ऑफ द फॉग. तो क्लियर डे में अच्छा व्यू दिखता है यहाँ से. But anyways, today in this video, I'm going to talk about my motorcycle, that is Triumph Scrambler 400X, and it's a beautiful motorcycle, best motorcycle that I have ever had. बढ़िया motorcycle है, लेकिन everything that you have in your life, उसका सब कुछ का कुछ ना कुछ advantage और disadvantage होता है. Everything is not perfect in this world. So इस motorcycle का भी related कुछ issues, there are some cons that every motorcycle has, और इसका भी कुछ cons वगैरह है जो इस वीडियो पे आपके साथ शेयर करूंगा. That is the reason for making this video. तो वही है गाइज, इस वीडियो में उसी के ऊपर हम बात करेंगे. एंड लेट मी टेल यू दैट दिस मोटरसाइकिल इज वन ऑफ द बेस्ट मोटरसाइकिल राइट नाउ इन इंडियन मार्केट, इफ आई हैव टू से. मेनी पीपल हु ऑलरेडी ओन दिस मोटरसाइकिल, आप लोग शायद अग्री करोगे, बट देन इसका इश्यूज, छोटा मोटा इश्यूज है जो आपको जानना जरूरी है. सो मे बी इफ यू आर प्लानिंग टू बाय दिस मोटरसाइकिल और इफ यू ऑलरेडी हैव दिस मोटरसाइकिल, सो यू पीपल माइट बी इंटरेस्टेड टू नो दिस इश्यूज दैट आई हैव बीन फेसिंग. सो वीडियो पे बने रहे बिकॉज इट माइट सेव योर लिटिल बिट ऑफ हेडेक एंड यू माइट know some vital information about this motorcycle. So kindly watch this video. Can erase all the past and the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Alright, so number one issue के बारे में बात करते हैं. And the number one issue that I'm facing with this motorcycle is related to the engine of the motorcycle. So there are several issues actually with the engine, but let me tell you that this engine is a very beautiful, engine made by Triumph. The engine is totally refined, no doubt about it. It has a lot of power and torque, sufficient power and torque I would say for enjoying your ride. लेकिन साथ साथ में थोड़ा बहुत इश्यूज तो रहता ही है क्योंकि मशीनरी चीज़ हो गया. तो बात करते हैं पहला इश्यू का. So some of you have mentioned this and wanted me to talk about this, that is the stalling issues. एक दो बंदा ने कमेंट भी किया है कि why are you not talking about the stalling issues of the motorcycle, what about it and all. तो मैं इसलिए बात नहीं कर रहा था स्टॉलिंग इश्यूज़ के बारे में क्योंकि मेरा मोटरसाइकिल में उतना ज़्यादा persistently मेरे को I didn't have to face that stalling issues. But yes, I have to be honest कि स्टॉलिंग इश्यूज़ मेरा मोटरसाइकिल में भी है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है जहाँ कि मैं मेरे को इतना ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ा. स्पेशली when you're riding in the stop and go traffic situations where you have to downshift and change the gears a lot. So उस वक्त कभी कभार गियर नंबर 2 में मेरे को स्टॉलिंग इश्यूज़ फेस हुआ था और गियर नंबर 3 में भी मेरे को स्टॉलिंग इश्यूज़ फेस हुआ था. तो ऐसा नहीं कि बार बार रिपीटेडली ये स्टॉलिंग इश्यूज़ आता है. मैंने कभी भी कैमरा में कैप्चर नहीं कर पाया कि स्टॉलिंग इश्यूज़ का, लेकिन हाँ स्टॉलिंग इश्यूज़ ज़रूर है. तो इसका सल्यूशन जो है वो कह रहे थे कि व्हेन यू गो फॉर सर्विसिंग तो इनका ये जो इश्यू जो सर्किट बोर्ड होता है उनको थोड़ा अपडेट करके स्टॉलिंग इश्यूज़ कुछ हद तक कम हो जाएगा, ऐसा मेरे को सुनने में आया था. तो मेरा ये बाइक का फर्स्ट एंड सेकंड सर्विसिंग हो चुका है, थर्ड सर्विसिंग अभी तक हुआ नहीं है. अभी सर्विसिंग का टाइम नहीं आया, तो मैं ज़रूर in future I'll go for the servicing, and then during that time I'll talk with the service center people and then see what we can do about the stalling issues. And the next thing that related to engine is the engine heat management. ये इसका बारे में मैंने बात भी किया था. तो जब भी आप स्टॉप एंड गो ट्रैफिक सिचुएशंस का ये मामला है तो वहाँ पे भी थोड़ा बहुत हीट जो है
इस इंजन से आपको देखने को मिलेगा आपको फील होगा। लेकिन उसका भी सोल्यूशन, अगर आप अच्छी तरह का राइडिंग पैंट्स या जीन्स वगैरह डेनिम्स वगैरह पहन रखे हो तो उतना ज़्यादा आपको फील नहीं होगा लेग्स पे। एंड रिलेटेड टू हीट मैनेजमेंट, इसका जो रेडिएटर फ़ैन है वो बार बार किक इन होता है। इसके चलते क्या होता है कि एक नॉइज़ आ जाता है इंजन से। सो वो नॉइज़, रेडिएटर फ़ैन का नॉइज़ बहुत इरिटेटिंग है। मैनी पीपल हु ओन दिस मोटरसाइकिल कैन रिलेट दिस। तो इसका भी सोल्यूशन शायद जो कूलेंट, ये दिस अ लिक्विड कूल इंजन, सो इसमें कूलेंट जाता है। तो कूलेंट को जो भी स्टॉक कूलेंट है उसको चेंज करके एक अच्छा वाला कूलेंट, अच्छा कंपनी का कूलेंट लगाएंगे तो वो रेडिएटर फ़ैन बार बार घूमना वो भी थोड़ा कम हो सकता है, ऐसा मेरे को सुनने में आया। मैंने अभी तक वो नहीं किया है, कूलेंट चेंज नहीं किया है। तो देखेंगे फ्यूचर में अगर कूलेंट मिलता है मेरे को अच्छा कंपनी का, और रिसर्च करके मैं अगर चेंज करा देता हूँ तो उसका अपडेट मैं आपको दे दूँगा। और लास्ट एक इंजन रिलेटेड जो है कि इंजन इज़ प्रीटी रिफाइंड बट नॉट इन लो आरपीएम्स। जब भी आप लो आरपीएम्स में बाइक चलाते हो ट्रैफिक सिचुएशन में, स्पेशली व्हेन यू आर राइडिंग इन बिजी सिटी ट्रैफिक, तो ये इंजन का जो नॉकिंग साउंड है, यू डोंट फील इट लाइक दैट इंजन इज साउंडिंग प्रीटी गुड, प्रीटी ऑसम। वो सुनने में उतना अच्छा नहीं लगता है। तो इंजन का जो लो आरपीएम का साउंड है इंजन से जो आता है वो मेरे को पसंद नहीं है इस बाइक पे। तो ये सब 3-4 इश्यूज़ मैं इंजन के रिलेटेड फेस कर रहा था तो आपको बता दिया। सो दैट इज़ द फर्स्ट इशू दैट आई एम फेसिंग विद द मोटरसाइकिल। आगे चल के सेकेंड इशू के बारे में बात करते हैं। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. This place is called Burmek in somewhere near to Monsang area, कालिम्पोंग का आउटस्कर्ट्स में पड़ता है। और यहाँ पे इतना सारा होम स्टे आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, लोकल टूरिस्ट कैलकाटा से और आसपास का एरिया से। तो दे एन्जॉय स्टेइंग ओवर हियर। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। यहाँ का वेदर भी बहुत काफ़ी बढ़िया होता है, तो आप लोग भी यहाँ पे आ सकते हो। दिस इज़ कॉल्ड बर्मेक एरिया ऑफ Kalimpong, outskirts of Kalimpong. And then taking the conversation forward, let's talk about the second issue that I'm facing with the motorcycle. That's related to, like a lot of elements are there. It's related to the aesthetics of the motorcycle. So this motorcycle, no doubt, it's a beautiful design. ये Scrambler जो Triumph का higher variant का Scrambler है, Scrambler 900, Scrambler 1200. The design is inspired by those big motorcycles. So design wise देखने में काफ़ी अच्छा है. It has that road presence design. But then related to the aesthetics of the bike, there are few issues that I have faced, and that is first I'll start with the headlights. इसमें जो हेडलाइट दिया गया है वो LED हेडलाइट्स है, but then the headlights is of no use. इसका हेडलाइट करूँ, ये जब भी आप नाइट राइड करते हो तब आपको फील होगा कि हेडलाइट का पावर इतना बढ़िया नहीं है। हाईवे में तो और भी द विजिबिलिटी इज़ क्वाइट लो। सो दैट इज़ द फर्स्ट इश्यू। हेड सोल्यूशन है कि आप लोग को कुछ एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी लाइट्स लगाना पड़ेगा। एंड द सेकेंड इशू दैट आई हैव फेस्ड इन दिस मोटरसाइकिल इज़ बिकॉज ऑफ द सेंटर स्टैंड। देयर इज़ नो सेंटर स्टैंड इन द मोटरसाइकिल। सो सेंटर स्टैंड ना होने की वजह से ऑब्वियसली इसका मेंटेनेंस में, चेन ल्यूब, चेन क्लीनिंग में और काफ़ी सारे मेंटेनेंस वर्क में आपको दिक्कत फेस करना पड़ता है। तो आई हैव फेस दैट इशू। सो दैट इज़ अनदर इशू दैट आई हैव विद द मोटरसाइकिल। नेक्स्ट आपको बता दूं तो सीट हाइट इसका 835 mm and it's a very tall motorcycle, so sometimes it might be problem for the short riders. So if your height is below 5'6", 5'7" से बिलो है तो आपको थोड़ा सा इश्यू फेस करना पड़ता है, क्योंकि आपका अच्छी तरह से you cannot plant your foot down on the ground, you have to tiptoe. मेरा भी हाइट 5'6" है। मेरे को भी बहुत जगह में इश्यू फेस करना पड़ा बिकॉज ऑफ द टॉल सीट हाइट। तो ये एक दिक्कत है। दूसरा दिक्कत सीट से, इट्स रिलेटेड टू सीट। द स्टॉक सीट दैट कम्स विद दिस मोटरसाइकिल इज़ प्रीटी नाइस। इट्स स्पेशियस, आप इधर उधर मूव कर सकते हो। बट द सेम थिंग आई कैनॉट से व्हेन यू गो फॉर अ लॉन्गर राइड्स, द सीट माइट फील लिटिल बिट अनकम्फर्टेबल। तो आपको थोड़ा सा आपका बटक्स में आपको पेन हो सकता है लॉन्गर राइड्स में। सो फॉर दैट द सोल्यूशन इज़ आपको वो जेल वाला सीट लगा सकते हो। उससे वो लगाने से अच्छा होता है, लेकिन सीट हाइट थोड़ा बढ़ जाता है फिर भी। इश्यू दैट आई फेस रिलेटेड टू द विंड स्क्रीन। ये विंड स्क्रीन, दिस इज अ स्क्रैम्बलर मोटरसाइकिल, सो इसमें छोटा सा विंड स्क्रीन आता है। And then it doesn't have a longer, bigger windscreen like you find in the adventure tourer motorcycle. So because of this, you are going to face some wind blast issues, especially when you're riding in higher speeds. That wind blast can make you little bit fatigue and tiring. आपके लिए वो ride हो सकता है।
सो उसका भी सोल्यूशन है। अभी आफ्टर मार्केट विंडस्क्रीन इसका आ रहा है। मैंने काफ़ी सारे यूट्यूबर को दिखाया कि विंडस्क्रीन उन चेंज करके बड़ा सा विंडस्क्रीन लगाया है, काइंड ऑफ हिमालयन की तरह का विंडस्क्रीन इसमें आता है, तो वो भी आप लगा सकते हो। उससे थोड़ा बाइक का लुक्स भी चेंज हो जाएगा। लेकिन पर्सनली आई डिडंट फील इट नाइस, वो लुक्स मेरे को अच्छा नहीं लगा। तो मेरे को इसी से ये जो एक्सेसरीज़ ट्रायम्फ से आता है, तो ट्रायम्फ की ये ओरिजिनल एक्सेसरीज़ है, वही लगा के रखा हूँ अभी तक। तो हम लोग का यहाँ पे इतना ज़्यादा स्पीड भी हम लोग बाइक नहीं चलाते, तो पहाड़ी रास्ता है, तो अभी तक मेरे को विंड ब्लास्ट का इश्यू उतना ज़्यादा फेस नहीं हुआ है। तो हाँ, वही छोटा मोटा इश्यूज़ है जो मैं फेस कर रहा हूँ मोटरसाइकिल में, related to the design and the aesthetics of the motorcycle. No, I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence. So in the last section of the video, I'll just talk about the two remaining problems that I normally find with this motorcycle, and it's related to, the first one is related to its suspension. आगे और पीछे में इसका रियर एंड फ्रंट में 150 mm का सस्पेंशन ट्रैवल आपको मिल जाता है। द स्टॉक सस्पेंशन इज प्रीटी गुड, स्पेशली व्हेन यू आर राइडिंग इन द रोड्स एंड आल्सो इन माइल्ड ऑफ रोड कंडीशंस। बट देन व्हेन यू गो टू द हार्डकोर ऑफ रोड ट्रेल्स एंड डीप पॉटहोल्स अगर आपको मिल जाता है, तो यू विल फाइंड द सस्पेंशन इज लिटिल बिट हार्श एंड लिटिल बिट लाइक नॉट गुड इनफ फॉर दैट काइंड ऑफ रोड्स, जहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा ऑफ रोड मिलेगा, और डीप पॉट होल्स में आपको काफ़ी ज़्यादा बाइक को स्लो डाउन करना पड़ता है, क्योंकि यू डोंट गेट दैट कॉन्फिडेंस इन दैट सस्पेंशन। जो हिमालयन में और एक्सपल्स में आपको जितना ट्रैवल का सस्पेंशन मिलता है उतना इसमें नहीं है। तो you feel that it's not made for, this motorcycle is not made for hardcore off-roading. But आपका उसका solution आप क्या निकाल सकते हो कि this rear suspension is preload adjustable, so you can adjust it with the help of the expert mechanic. You can go and adjust your preload suspension according to your height, according to your weight, and then the riding style that you have. और उससे आपका सस्पेंशन का जो परफॉर्मेंस है काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएगा। सो दैट इज़ रिलेटेड टू द सस्पेंशन। बट डोंट टेक मी रॉन्ग गाइज, ये सस्पेंशन काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी अच्छा है, स्पेशली व्हेन यू आर गोइंग ऑन द रोड एंड ऑल्सो माइल्ड ऑफ रोड। इसका कैपेबिलिटी बहुत अच्छा है बाइक का सस्पेंशन का। जैसे कि आप देख सकते हो, ऐसा ऑन द गो छोटा मोटा जो भी लाइक ऑफ रोड जैसा माहौल आ जाता है इसको ये बाइक कैन एडजस्ट प्रॉपर्ली। यू कैन ऑल्सो डू सम सैडलिंग विच विल ऑल्सो हेल्प यू टू maneuver and tackle those on the go off-road kind of situations. And the last issue that I face with the motorcycle personally, मेरे को अभी तक जो फेस किया है वो है इसका the service network reach is not good. मैं जहाँ पे रहता हूँ तो वहाँ पे इसका सर्विस सेंटर, ऑफिशियल सर्विस सेंटर नहीं है। So if I have to go for servicing, then I have to travel all the way down to Siliguri, which is almost like अराउंड कितना होगा 100 के ऊपर है डिस्टेंस। तो वहाँ तक मेरे को ट्रैवल करके जाना पड़ता है इसका सर्विसिंग कराने के लिए। बट द गुड थिंग इज़ दैट दिस बाइक डजंट नीड टू गो फॉर सर्विसिंग प्रीटी ऑफन, जैसे दूसरा बाइक में, स्पेशली रॉयल एनफील्ड, सॉरी टू मेंशन दिस, बट देन रॉयल एनफील्ड में आपको बार बार जो है कि सर्विसिंग जाना पड़ता है। तो ये बाइक में ऐसा नहीं है। दिस बाइक इज़ क्वाइट प्रीमियमली बिल्ड, प्रीमियम क्वालिटी से बिल्ड किया गया है, तो इसका सर्विसिंग ये बाइक उतना ज़्यादा डजंट रिक्वायर। सो दैट इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग। इसका कंपनी से भी क्लेम किया गया है कि दैट यू नीड टू सर्विस ओनली आफ्टर यू रीच 16,000 किलोमीटर्स वंस यू स्टार्ट राइडिंग इट, वंस यू परचेज दिस मोटरसाइकिल। सो सर्विस गैप बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए वो प्रॉब्लम भी कहीं हद तक वी कैन हैंडल इट। सो दैट इज़ द लास्ट इश्यू। एंड देन मेंटेनेंस कॉस्ट थोड़ा हाई हो सकता है, इसका जो भी स्पेयर पार्ट्स वगैरह है रॉयल एनफील्ड से थोड़ा महंगा है। सो दैट इज़ ऑल्सो अनदर like thing that I need to mention over here for you guys. I have forgot to talk about one particular issue about this motorcycle, and it's related to vibrations. Now, I have not included vibrations as one of the issues in my motorcycle because the vibrations that I feel from this motorcycle is bearable and I have no issues with it. The vibration which is present in the motorcycle at the moment gives me that feeling of riding a 400cc scrambler motorcycle, and it's not too much bothering. But yes, if we ride motorcycle in higher speeds, like if we go above 100 kmph, then maybe the vibrations will start kicking in even harder, and then it might be a little bit uneasy because of that. But here in
the roads that I normally ride, you see in my video that I cross more than 80 kmph because of the road conditions. So that is the reason the vibrations is not too much bothering for me. So there you go guys. अभी मैं जहाँ पे जा रहा हूँ वो ये जगह है काश्यम, छोटा सा गांव है, यहाँ पे कुछ काम के लिए आया था. तो एनीवेज और वीडियो को एंड करते हैं आज का वीडियो को. रिगार्डिंग दिस मोटरसाइकिल, सी दिस मोटरसाइकिल इज नॉट अ परफेक्ट मोटरसाइकिल ऑब्वियसली. इसमें भी कुछ इश्यूज वगैरह है. ऑल द इश्यूज दैट आई हैव मेंशन्ड इन दिस वीडियो आर एग्जैक्टली द इश्यूज दैट आई हैव बीन फेसिंग. बट देन डोंट गेट मी रॉन्ग गाइज, दिस मोटरसाइकिल इज वन ऑफ बेस्ट मोटरसाइकिल, ब्यूटीफुल मोटरसाइकिल इन द प्राइस रेंज राइट नाउ इन इंडियन मोटरसाइकिल मार्केट आई वुड से. ये नहीं कि छोटा मोटा इश्यूज तो हर किसी मोटरसाइकिल में रहता है. तो जो भी इश्यूज है इस मोटरसाइकिल का रिलेटेड मैंने आपको इस वीडियो पे बताया है. इफ यू आर फेसिंग other types of issues, if you have any tips or any kind of solutions to the problems that we have discussed, so please drop down in the comment section. We will be glad to hear from you. And please don't forget to like this video if you got some useful information about this motorcycle. And also please subscribe to the channel. बहुत सारे लोग मेरा videos देखते हैं लेकिन they have not subscribed to the channel. Please do it. It will give me extra motivation. It might be a little bit of help for YouTubers, like small YouTubers like us. Yeah, that's it in the video guys. I'll end the video over here. Thank you for watching. Thank you for joining me in this video. I'll see you soon with a similar kind of content in the next video pretty soon. Till then, take care guys. यहाँ का व्यू, यहाँ का नज़ारा देखते हुए ये वीडियो को एंड करते हैं. Take care. See you very soon on the road. Bye bye.